ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪ੍ਰੈਪ ਕਲਾਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ 2018 ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਵਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਦੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, 17 ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 14 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਬਾਏ 1। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ, ਉਹ 2018 ਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਾर्ट 1 वीडियो के अंदर आप स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नैक्सट अपना फर्स्ट क्वेश्चन की है, इस चीज़ को समझो। फर्स्ट क्वेश्चन की कह रहा, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा वैन द टोटल यूटिलिटी कर्व रीच इट्स मैक्सिमम लैवल द मार्जिनल यूटिलिटीज़, कहता जदों अपनी टोटल यूटिलिटी करव रीच इट्स मैक्सिमम लैवल दैन मार्जिनल यूटिलिटीज़। हुण क्वेश्चन नूं ध्यान नाल समझोगे, उहदे अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओगे तो ईजी रहूगा। टोटल यूटिलिटी रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट। लो जी, टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बन गया। आई थिंक थोड़े कॉन्सैप्ट से सारे क्लीयर होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ने। टोटल यूटिलिटी रीच इट्स मैक्सिमम पॉइंट। लो जी, मैक्सिमम पॉइंट आप फाइंड आउट कर लिया। दैन मार्जिनल यूटिलिटी आ डायग्राम इदा होंदा मार्जिनल यूटिलिटी का। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, 0 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਲੀਅਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਨਸਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बिना एनालाइज किए कदे भी थोनों कोई भी क्वेश्चन के आंसर में टिक नहीं करना चाहिए। 1-2 मिनट जरूर लेने चाहिए, अपने को बहुत टाइम होंगे इन्होंने एग्जाम्स के। सो सैकेंड क्वेश्चन, द मोनोपलिस्टिक कैन फिक्स एनी प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट बट कैन नॉट डिटरमिन। कहता मोनोपलिस्टिक फर्म, थोड़ा पता 3 टाइप्स की फर्म दी, मोनोपलिस्टिक, मोनोपली एंड परफेक्ट कंपटीशन। सो कहता ये की डिसाइड कर सकते हैं बट की नहीं डिसाइड कर सकते। रेवन्यू, फर्म अपना रेवन्यू आप डिसाइड कर दिया, कॉस्ट भी आप डिसाइड कर दिया, सप्लाई मार्केट के किन्नी भेजनी है ये भी आप डिसाइड कर दिया, की नहीं डिसाइड कर दी डिमांड। वो हुण उन्होंने नहीं पता होंदा कि साडे प्रोडक्ट की किन्नी डिमांड होगी। सो राइट आंसर इज डी। क्लीयर। बिना टाइम वेस्ट किए थर्ड क्वेश्चन, सैलिंग एक्सपेंसिज इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कहना सैलिंग एक्सपेंसिज आप की इंक्लूड करते हैं, बहुत ईजी आ। विदिन सैकेंड आंसर सोच के देखो इसका आंसर की होना चाहिए। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਫਰਮ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਟੂ ਦਾ ਡੀਲਰ, ਡੀਲਰਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਫਰਮ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਇਹ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਆ? ਇਹ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਫਰਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਆ ਮੋਨੋਪਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫਰਮ ਸੈਲ ਡੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਮੋਨੋਪਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਦੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋ सकते हैं। डिफरेंशियल, होमोजीनियस या ऑल ऑफ अबव या नन ऑफ दिस। हुण तुहानूं मैं ऑलरेडी दस चुका 3 तरह की मार्केट होंदी है, मोनोपलिस्टिक, मोनोपली एंड परफेक्ट कंपीटीशन। परफेक्ट कंपीटीशन दिंदी है होमोजीनियस प्रोडक्ट सेम, दैट मीनस वो मोनोपलिस्टिक के अंदर नहीं आता। हुण बचा कि नन ऑफ अबव तो हो नहीं सकता क्योंकि आपको एक ऑप्शन दिख रहा वा, और सी ऑल ऑफ अबव भी नहीं हो सकता क्योंकि आप बी कैंसल करता। सो राइट आंसर इज ए। डिफरेंशियल, मोनोपलिस्टिक की एक बड़ी वधिया एग्जाम्पल है कोलगेट, जिहदे विच अपने अलग अलग ब्रांड्स मिल जाते हैं। कोलगेट आ, पेप्सोडेंट आ, दंत मंजन आ। सो ये डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं। नैक्सट, फिफ्थ क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू अनेबल्स द फर्म टू गैट अ रेम्यूनरेशन प्राइस, फार्मर्स टू गैट अ रेम्यूनरेशन प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस एंड इनकरेज द क्रॉप। कहना इनकरेज किया जाता कद लई?
फॉर द डिवर्सिफिकेशन किहदे द्वारा गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कहना जे गवर्नमेंट ने फार्मर्स नू इनकरेज करना कि तुसीं क्रॉप्स दे विच डिवर्सिफिकेशन लैके आओ मतलब आ क्रॉप नहीं वो उगाओ दैन तुहानूं किहड़ा किस तरीके का रेमूनरेशन फार्मर नू देना पैना ਇਹ क्वेश्चन का मीनिंग आ सो ये तो हुण सारे बच्चों के अपने टिप्स से होगा क्योंकि आप पिछे जे किसानी अंदोलन देखा सो उत्थे किसानी अंदोलन दे विच इक्को चीज़ डिस्कस की जा रही सी सानू की चाहिए MSP मिनीमम सपोर्ट प्राइस जे तुसीं सानू MSP दोगे तो तुसीं जिहड़ा प्रोडक्ट करोगे और सानू प्रोवाइड कराओगे MSP दैन प्राइस दोगे तो असीं कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने नूं तैयार हाँ। नैक्सट क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व सो इसका आंसर की है C। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज द वेरीअस कॉम्बीनेशन ऑफ द टू गुड्स बहुत बार पढ़िया आप इंडिफरेंस कर्व हुण दिमाग दे विच सोच के आओगे इंडिफरेंस कर्व की हुंदा हैव आइडेंटिकल प्राइसिस या हैव डिफरेंशियल प्राइसिस के बारे दसदा इंडिफरेंस कर्व या प्रोवाइड अ कंज्यूमर इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के बारे दसदा या प्रोवाइड अ कंज्यूमर इक्वल टोटल यूटिलिटी के बारे मैं तुहानूं थोड़ी हेल्प कर दिना आंसर A भी है नहीं गा ते आंसर B भी है नहीं गा बट बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही गलती करके आए ਸੀਗੇ प्रोवाइड अ कंज्यूमर इक्वल मार्जिन यूटिलिटी या प्रोवाइड अ कंज्यूमर इक्वल टोटल यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व किस चीज़ से स्ट्रैस करता इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के उपर या इक्वल टोटल यूटिलिटी के उपर सो जे तुसीं ਇਹਦਾ आंसर सोच लिया होवे बट ਇਹਦਾ आंसर राइट आंसर इज टोटल इक्वल यूटिलिटी क्लीयर सो ਇਹਦਾ सही आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन टोटल रेवन्यू फॉल्स कहते टोटल रेवन्यू फॉल कर जाता एज अ प्राइस ऑफ द गुड्स इनक्रीज कि जो अपने प्राइस गुड्स का जो प्राइस आ वो इनक्रीज कर जाता द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की होगी जे तुम क्वेश्चन में पढ़ोगे तो वो अकॉर्डिंग ही एक चार्ट बना लोगे तो तुम सौखा रहूगा। मैं थोड़ा छोटी एग्जाम्पल देना प्राइस विल बी अ इनक्रीज मान लो पहला प्राइस आ जोड़ा आप प्रोडक्ट का आप इत्थे लिख लें 10 रुपये कि साडे प्रोडक्ट का जोड़ा प्राइस आ वो 10 रुपये तो साडे प्रोडक्ट की जी डिमांड आप वो भी 10 लगा लें कि 10 यूनिट्स साडे प्रोडक्ट की डिमांड आ दैट मीनस साडा रेवन्यू कितना हो रहा इत्थों समझ लग जू थोनों साडा रेवन्यू कितना हो रहा रेवन्यू 100 वो की कह रहा टोटल रेवन्यू फॉल्स उन्हें एक गल कहती कहना रेवन्यू फॉल किया कदों जो साडा प्राइस इंक्रीज कर गया हुण आप इत्थे लिख लेना प्राइस कितना हो गया 12 तो रेवन्यू साडा फॉल कर गया 96 कर गया दैन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट मीनस डिमांड कितनी हुई होगी 8 12 8 96 होंदा 12 8 या 96 होंदा सो कहता जो हुण उन्हें अपन क्वेश्चन दिता आप अकॉर्डिंग एक चार्ट तैयार कर लिया वो अकॉर्डिंग समझ के देखो कहना पहला 10 प्राइस सीगा 10 यूनिट्स विकदियां सी 100 साडा रेवन्यू होंदा सी प्राइस वध गया डिमांड घट गई तो डिमांड घटन नाल रेवन्यू भी घट गया हालांकि फर्म के अकॉर्डिंग सोचोगे तो प्राइस वधन नाल रेवन्यू वधना चाहिए सीगा बट उन्होंने रेवन्यू घट गया दैट मीनस इत्थे यह किहड़ी इलास्टिसिटी नूं प्रेजेंट करता इस चीज़ नूं समझो कि यह किहड़ी इलास्टिसिटी नूं प्रेजेंट करता आई होप तुसीं इहदा आंसर देख लिया होगा सो इहदा राइट आंसर इज इलास्टिक ठीक है जी यह विच इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इलास्टिक हुण इलास्टिक की हुंदा ये तुहानूं आई होप क्लीयर होगा कि प्राइस इलास्टिक कदों हुंदा इहदा मतलब की हुंदा जे तुहानूं इहदा मीनिंग क्लीयर है तां ही तुसीं इहदा आंसर है जिहड़ा वो इलास्टिक लगाओगे सोच के देखो इहदा आंसर की है इलास्टिक है इलास्टिक का मीनिंग की है इलास्टिक का मीनिंग की हुंदा कि चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द बायर एंड द सेलर इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस फॉर अ गुड्स कहना जिमें जिमें प्राइस चेंज हुंदा उवें उवें जिहड़ा बायर का जिहड़ा बिहेवियर चेंज हुंदा वा सो ये सेम बिहेवियर चेंज होया प्राइस वधिया डिमांड घट गई ऑफकोर्स रेवन्यू रिड्यूस होना सी क्योंकि प्राइस वध गया सो यह इलास्टिक की डेफिनेशन आ कि जिहड़ा प्राइस के वधन नाल डिमांड घट जाती है डिमांड घटदी है तो रेवन्यू ऑफकोर्स डिक्रीज ही होगा सो इनू इलास्टिक कहते हैं। नैक्सट क्वेश्चन आई होप समझ लग गया होगा जे नहीं समझ लग गया तो मैं ये रिलेटेड एक स्पैसीफिक वीडियो बनाई है उस चीज़ को तुम सुन सकते हो तो अपना कॉन्सैप्ट क्लीयर कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल बढ़ते हैं फॉर इनफीरियर कॉमोडिटीज़ इनकम इफेक्टिव्स हाँ जी
कहना जे अपनियां गुड्स इनफीरीयर गुड्स ने तो अपनी जिहड़ी इलास्टिसिटी ऑफ जिहड़ी अपना इनकम इफैक्ट की होगा जे अपनियां गुड्स साइड है वो इनफीरीयर। सोच के देखो इसदा आंसर, हरी अब जल्दी जल्दी। पहली गल तो तुहानूं पता होना चाहिए इनफीरीयर गुड्स किहड़ियां हुंदियां। इनफीरीयर गुड्स वो हुंदियां जिन्हां दे डिमांड आ जिहड़ी वो घट जांदी आ इनकम दे वधण दे नाल। हुण इत्थों ही तुहानूं कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। माड़ियां गुड्स, इनफीरीयर मतलब घटिया गुड्स कह सकते हो। जदों घटिया गुड्स इनकम इफैक्ट की आ, देखो इनकम वध गई तो आपां घटिया गुड्स नूं बाय करना छड्ड दांगे, है ना। और जे इनकम घट गई तो आपां मतलब जिहड़े लेबर करते हैं वो ही गुड्स नूं इनफीरीयर गुड्स नूं बाय करते हैं। सो इस चीज़ समझो कि इनकम इफैक्ट की आ। मतलब मैं इत्थे आपां डायग्रामेटिकली शो करते हैं, जे इनकम वध गई तो इनफीरीयर गुड्स की जिहड़ी डिमांड वो की होगी, घट जूगी। हुण तुहानूं इत्थों आंसर पता लग गया होगा। सो राइट आंसर इज नैगेटिव। क्यों? क्योंकि देखो एक उपर नूं जा रहा एक थल्ले नूं जा रहा, सो इन्हां दा आपस च किहड़ा जिहा रिलेशन आ, नैगेटिव रिलेशन आ। क्लीयर? सो राइट आंसर इज बी। क्लीयर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट क्रिएशन मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट, गिविंग अ लोन आफ्टर कैंसलेशन ऑफ ओल्ड लोन। की क्रेडिट क्रिएशन इहनूं कहंदे आ? गिविंग अ मोर एंड मोर लोन्स टू BPL फैमिलीज, या टू एक्सपैंड द डिपॉजिट बाय एक्सपेंडिंग अ लोन एंड एडवांसिस, या ऑल ऑफ अबव। पहले लोन कैंसल करके दूसरा लोन देना, ये कोई भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं गा, बैंक द्वारा किया जाता। तुहानूं पता होना चाहिए क्रेडिट क्रिएशन, ये 12th का टॉपिक है ना। गिविंग मोर एंड मोर लोन्स टू द BPL फैमिलीज, ये भी कोई क्रेडिट क्रिएशन नहीं गा। क्रेडिट क्रिएशन की हुंदा कि जे बैंक कोले 100 रुपये आया तो वो 10 रुपये अपने कोले रख के 90 रुपये का अगेन गां लोन दे देवे। इस चीज़ नूं क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तुसीं ये बिजनेस की बुक्स विच पढ़िया होना। सो राइट आंसर इज सी। क्लीयर? आई होप तुहानूं ये क्लीयर होगा। इसका आंसर ऑल ऑफ अबव नहीं गा, ध्यान रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज बिलो द एवरेज वेरीएबल कॉस्ट कर्व, दैन की होगा? इमीडिएटली जो तुसीं मार्जिनल यूटिलिटी कोई भी कर्व वाला क्वेश्चन आ रहा, MU वाला, MC वाला, टोटल यूटिलिटी वाला, कोई भी है टोटल कॉस्ट वाला, टोटल रेवन्यू वाला क्वेश्चन आ रहा, तो इमीडिएटली थोड़े दिमाग दे विच डायग्राम घूमन जाने चाहिए ने। और तुसीं बिना डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना कदे भी। जे तुसीं सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो गलत होगा। लाइक मैं इत्थे ऑलरेडी पहले डायग्राम बनाया होया, कहता जो मार्जिनल यूटिलिटी आ देखो मार्जिनल कॉस्ट कर्व MC है ना इज बिलो द एवरेज वेरीएबल कॉस्ट। आ देखो आप बनाया है एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ जा रही है। क्लीयर? और मार्जिनल कॉस्ट जो घट रही है बिलो द एवरेज कॉस्ट आ घट रही है, आ भी हेठ आई है ना। जो घट रही है बिलो द एवरेज कॉस्ट, दैन एवरेज कॉस्ट आर इंक्रीज। की एवरेज कॉस्ट उदों वध रही है? नहीं। जो MC बिलो आ तो एवरेज कॉस्ट घट रही है। आ देखो आ MC आ, MC आ, डायग्राम के अंदर तुहानूं क्लीयर होगा। आ MC आ, जो ये घट रही है, जो ये घट रही आ तो AC भी घट रही, एवरेज वेरीएबल कॉस्ट भी घट रही है। सो पहला आंसर गलत हो गया। डायग्राम में देख के थोड़े सारे क्लीयर हो जाने। सैकेंड देखोगे एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आर डिक्रीज। देखो जो ये घट रही है तो एवरेज वेरीएबल कॉस्ट भी घट रही है। उन्हें बिलो किया, जिन्नी देर ये बिलो आ तो उन्नी देर वो घट रही है। सो इसका मतलब ये सही हो सकता। आप हजे इन्हूं साइड तक लेने। सी पढ़ो, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी डिक्रीज। मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी डिक्रीज कहना जदों देखो क्वेश्चन पढ़ के मार्जिनल कॉस्ट इज बिलो द एवरेज वेरीएबल कॉस्ट, दैन कहना जो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरीएबल कॉस्ट के थल्ले आ, देखो थल्ले ही आ एवरेज वेरीएबल कॉस्ट आ मार्जिनल कॉस्ट है थल्ले है ये मार्जिनल कॉस्ट। जे ये थल्ले है तो की ये घट रही है? मस्ट बी डिक्रीज। नो, ये आ देखो पहला घटती सी फिर ये इनक्रीज भी करन लग गई। ਇਹਦਾ मतलब ये भी नहीं होगा। बच्चे ये आंसर लगा के आ जाते हैं। नेक्स्ट एवरेज वेरीएबल कॉस्ट कुड बी आइदर इनक्रीज और डिक्रीज। नो, ये हमेशा डिक्रीज ही कर दी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट। सो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सो राइट आंसर इज बी। क्लीयर? राइट आंसर इज बी। ये डायग्राम तो बिना थोड़े होने ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट थर्टिकल क्वेश्चन 11th, इन विच ईयर द 11th 5 ईयर प्लान स्टार्ट। कहते किहड़े साल जाके 5 ईयर प्लान स्टार्ट होया सी? 11th। सो राइट आंसर इज बी। क्लीयर? नेक्स्ट ब्रॉड मनी इज रेफर्ड एज, ये तुहानूं कॉन्सैप्ट है M1 M2 M3 M4। ब्रॉड मनी किहड़ा कॉन्सैप्ट आ? सो डायरैक्टली इसका आंसर आप इत्थे डिस्कस करते हैं। जिहड़ा ब्रॉड मनी है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ M3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਕਲੀਅਰ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ।
ये सौखे जे टॉपिक ने और ये इंपॉर्टेंट भी ने। नैक्सट, इन ऑर्डर टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, कहना जे आप RBI ने इनकरेज करना कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वजे तो वो की करूगी। आप सारे ऑप्शन पढ़ के रिड्यूस द CRR, इंक्रीज द CRR या इंक्रीज द बैंक रेट या सेल ऑफ द सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। मैं थोड़ा सारे समझाना, ध्यान नाल समझने की कोशिश करो, थोरैटिकली नहीं प्रैक्टिकली। RBI जदों RBI जे थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज आ CRR की हुंदा, बैंक रेट की हुंदा ਤਾਂ ही होगा। जे RBI ने आप इतना स्टार्ट करते डी पॉइंट ने, जे RBI ने बैंक रेट्स ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ करता, मतलब बैंक ਦੇ इंटरस्ट ਇਨਕਰੀਜ਼ करता बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘਟੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆ ਵਿਆਜ ਖਾਣਾ ਗਿੱਝ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੇਲ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਦੋਂ RBI ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪੈਸਾ RBI ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ RBI ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ CRR, ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ RBI ਦੂਸਰੀ ਬੈਂਕਸ ਤੋਂ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਰੱਖੋ CRR। ਜਦੋਂ RBI ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਨੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ CRR ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ऑफिशियल लैंडर इज़ द लास्ट रिजोर्स इन इंडिया। ये सौखा जिहा क्वेश्चन है, इत्थों इमीडिएटली आ जाऊगा कि किहड़ा रिजोर्स आ। सो B विल बी आ राइट आंसर। RBI नूं ही लास्ट रिजोर्स इन इंडिया कहा जाता, बैंक ऑफ द बैंक कहा जाता। नैक्सट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज स्पैशली इस्टैबलिश्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑफ द फार्मर्स और द विलेजेस। हुण ये एक मैं वीडियो बनाई सी, जे तुहानूं याद होवे, उहदे विच मैं चंगी तरह डिस्कस किया है। ICICI भी होर भी कई बैंक्स के बारे भी डिस्कस किया है। वो अंदर हर एक बैंक की स्पैशलिटी सी भी किहड़ी बैंक की जी एस्टैबलिशमेंट है, वो ऑब्जैक्टिव्स की सी। जो तुसीं उन्होंने सुनिया होगा तो थोड़ा इत्थे कॉन्सैप्ट क्लीयर होगा। फिलहाल इत्थे देखो, विच आर द फॉलोइंग इज स्पैशली एस्टैबलिश्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट, कहंदा किहड़ी स्पैसीफिक एस्टैबलिश की गई सी, किहदे लई, किहड़ी बैंक, किहड़ी ब्रांच या किहड़ी ऐसी संस्था एस्टैबलिश की गई सी जिहड़ी कि मीट करती सी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रेडिट ऑफ द फार्मर्स और विलेजिस नूं, जिहदा काम की सीगा फार्मर्स ते विलेजिस नूं उधार देना। सो 15th का जिहड़ा राइट आंसर आ वो की आ, रीजनल रूरल बैंक। क्लीयर, रीजनल रूरल बैंक। सो 15 का आंसर की आ A। नैक्सट, द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टोटल वेरीएबल कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, हुण ये तुहानूं पता होना चाहिए। कहंदा इन्हां दे विच आपस टोटल वेरीएबल कॉस्ट ते टोटल कॉस्ट दे विच आपस दा जिहड़ा डिफरेंस आ उहनूं की कहा जांदा, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट या टोटल वेरीएबल कॉस्ट। सौखा जिहा क्वेश्चन है। सो इनू की कहा जाता, जे तुहानूं याद होवे कि टोटल कॉस्ट का जिहड़ा फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट का जिहड़ा फॉर्मूला उत्थों क्लीयर हो जाऊगा। ये की आ टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, फिक्सड कॉस्ट, टोटल फिक्सड कॉस्ट प्लस टोटल वेरीएबल कॉस्ट। हुण वो की कहंदा, जो वेरीएबल कॉस्ट नूं टोटल कॉस्ट तो इज इक्वल्स टू, जो इन्हों का आपस डिफरेंस होगा तो किहदे बराबर हो जाएगा, फिक्सड कॉस्ट दे। सो राइट आंसर इज C। क्लीयर। नैक्सट क्वेश्चन, डैश पेयर ऑफ द कमोडिटी इज एग्जाम्पल ऑफ द सबसीट्यूट। सबसीट्यूट का मतलब होंगे यदी जगह पर आप उन्होंने खरीद सकते। इंक एंड पेन आर द, इंक एंड पेन आर द कॉम्पलीमेंटरी गुड्स। जे इंक होगी जे इंक होगी तो ही पेन चलूगा, तो पेन होगा तो ही इंक की लोड़ पऊगी। मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, डायमंड एंड काओ, यदा कोई आपस कॉम्बीनेशन ही है नहीं गा। क्लीयर। सो यदा आंसर सोच के देखो, 17th का जो आंसर है वो की होना चाहिए। सो 17th का आंसर है जो मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, ये एक दूसरे लिए यूज़ किए जा सकते हैं। कॉफ़ी तो मिल्क, ये कॉम्बीनेशन है, जो मिल्क होगा तो ही कॉफ़ी बनूगी। सो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 18th क्वेश्चन, बच्चे की करते कॉफ़ी एंड मिल्क ला देंगे बिना सोचे। सो 18th क्वेश्चन कहता डाटा स्टोरेज सिस्टम। ये आगे थोड़े कंप्यूटराइज क्वेश्चन, क्योंकि अपने सिलेबस होंदा वा किते ना किते। सो ये थोड़े टैक्नीकल होंदे ने, इन्हों ध्यान नाल पढ़ के करना चाहिए। कहता दैट डाटा स्टोरेज सिस्टम दैट इज़ हिडन फ्रॉम द यूज़र एंड रिस्पॉन्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र टू एक्सटेंड द यूज़र्स इज़ ऑथोराइज टू असेस इज़ कॉल्ड। क्वेश्चन का मीनिंग समझो, कहना की चाहता, एक बार खुद रीड आउट करके देखो ये कहना की चाहता क्वेश्चन। सो
फिर मैं थोड़ा आंसर दसदा कहना डाटा स्टोरेज सिस्टम इज़ हिडन फ्रॉम द यूजर्स एंड रिस्पॉन्ड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स। कहता डाटा स्टोरेज सिस्टम की अपनी इन्फॉर्मेशन ਨੂੰ हिडन कर ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਦ ਐਕਸੈਸ ਆਫ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ बैक एंड डाटाबेस आ। क्लियर, बैक एंड डाटाबेस। नैक्सट क्वेश्चन द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज वन ऑफ द डैश एप्लीकेशन। कहना जी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आ उन्होंने की किया जाता वो किहड़ी एप्लीकेशन आ। सो वैब एप्लीकेशन कहा जाता, डाटाबेस ओरिएंटेड कहा जाता, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता, इमेज प्रोसैसिंग। हुण जिन्हें भी अपने अकाउंटिंग ने टैली सॉफ्टवेयर्स ने वो किहड़े हुंदे ने सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हुंदे ने। क्लीयर, सो इसदा आंसर की आ सिस्टम सॉरी ਇਹਦਾ आंसर बच्चे 19 ਦਾ डाटाबेस ओरिएंटेड ਆ। डाटाबेस ओरिएंटेड सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं कहा जाता। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो आ जाते ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ इंस्टॉल्ड ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ डाटाबेस ओरिएंटेड ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ डाटाबेस ओरिएंटेड। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 99.9% ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਓਰੀਐਂਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੈਨ ਬੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ਡ ਇਨਟੂ। Accounting software can be categorized into ready to use software, tailored software, customized software या all of above। कहते ਜਿਹੜਾ अपना accounting software ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ किस तरह ਦੀ कैटेगराइज ਦੇ अंदर डिवाइड ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। सो ਜਿਹੜਾ 20th ਦਾ आंसर ਆ ਉਹ ready to use software भी हैगा वा, tailored software भी हैगा वा ਤੇ customized software भी आ। सो राइट आंसर इज डी। क्लीयर, सो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਡੀ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਥ੍ਰੀ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਿਸਟਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ, ਸਟੋਰੇਜ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇਨਪੁਟ ਸਟੋਰੇਜ CPU। ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਨਪੁਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ A। 21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ A। ਕਲੀਅਰ, 21 ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ A। ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਐਂਡ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲੀਅਰ, ਨੈਕਸਟ द डाटा रिप्रजेंट थ्रू आउट द हिस्टोग्राम। ये बहुत हिस्टोग्राम का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होंगे। हिस्टोग्राम कैन बी हैल्प फाइंडिंग ग्राफिकली द मीन मीडियन मोड। थोड़ा पता होना चाहिए कि जो आप हिस्टोग्राम बनाने हिस्टोग्राम का डायग्राम बनाने तो वो की प्रजेंट होंगे थोड़ा पता होना चाहिए। मीन प्रजेंट होंगे, मोड या मीडियन। जो भी हिस्टोग्राम का डायग्राम बच्चे बनाया जाता है ये क्वेश्चन बहुत सौखा और बच्चे गलत करके आते। आप कहने कि सानू हिस्टोग्राम के बारे सारी नॉलेज है बट इतने आंसर है जो एनालाइज करके देखो ਇਹਦਾ आंसर बच्चे मीन नहीं गा, मीडियन भी नहीं गा। ਇਹਦਾ आंसर बच्चे मॉड आ। याद रखियो मॉड हिस्टोग्राम द्वारा प्रेजेंट किया जाता ग्राफिकली आपां नूं कैलकुलेट कर पाने, इवैल्यूएट कर पाने। नैक्सट ओगिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओगिव हिस्टोग्राम, ओगिव कैन बी अ हेल्प इन लोकेटेड ग्राफिकली। कहना ओगिव के अंदर की हुंदा वा, ओगिव किस चीज़ नूं प्रेजेंट करता वा जो आप ओगिव के अंदर डायग्रामिकली प्रेजेंट करते हैं तो वह मीडियन को डिफाइन करता। याद रखियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओगिव आ वो जो आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो वह मीडियन को रिप्रजेंट करता। नैक्सट, द डाटा रिप्रजेंट थ्रू अ अर्थमैटिक लाइन ग्राफ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द। बहुत इंपॉर्टेंट, द डाटा रिप्रजेंटेड थ्रू अर्थमैटिक लाइन graph help in understanding the long term trends, seasonality in data या cyclicity in data या all of above। देखो जो लाइन ग्राफ डायग्राम होंगे ना वो बच्चे हमेशा वो इवैल्यूएट करके दस देने आपां नूं किस चीज़ नूं लैके लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स नूं लैके जिहड़ा अर्थमैटिक लाइन ग्राफ आ। ठीक है,
क्योंकि वो मीन कड्ढिया जांदा, दैन उस कैलकुलेशनस कीतियां जांदियां, दैन वो अपन सैट करके दसदा कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स किहड़े ने। सो इसदा आंसर ना साइक्लिसिटी आ ना सीजनलिटी आ। सो राइट आंसर इज ए। क्लीयर। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ये सारे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੈप्टर ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ, ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ, ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 25th, ਵਿਡਥ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰ ਇਨ ਅ ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੀਡਸ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਇਕੁਅਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆ, ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। not need not to be equal. Second, width of the rectangles or in a histogram should be essential to be equal. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ width of the rectangles, ਜਿਹੜੇ rectangles ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ width ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ, the histogram can only formed with a continuous and classification of the data। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, 10 to 20, 20 to 30। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਰ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਆ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹਰੀ ਅਪ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਨ ਓਨਲੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਓਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਆ, ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਓਨਲੀ ਮਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਿਸਟੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ 26th question, cost of living index is another name for a, of course ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? 26th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਆ? ਦ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆ ਆਈਟਮਸ ਫਰੋਮ ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ 0। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ? ਦ ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਅਨਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਅਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਡਿਊਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਕੋਈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 1 2 3 ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ 100 ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ 99 ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਅਗੇਨ 5 6 ਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਆ 99 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਓਡਲੀ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਐਨ average alone is enough for comparative series, या arithmetic mean is a positional value. Which of the following is true? पहली गल जिहड़ा mean आ ओह positional value नहीं डिफाइन करता, वो कौन आ? मीडियन आ। ठीक है जी। कि मीडियन आ जिहड़ा ओह एक्सट्रीम वैल्यूज ना अफेक्ट करता, यह unduly affected, ਜਾਂ ਦ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈਟਮਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਇਜ਼ 0। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਮ ਆਫ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੀਡੀਅਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਆਫ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਹੇਅਰ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ, ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਦਾ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਅਲੋਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਨਫ ਟੂ ਕੰਪੇਅਰ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਲੋਕ PhD ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਮੈਥਡਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ F ਟੈਸਟ, T ਟੈਸਟ, Z ਟੈਸਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, F ਟੈਸਟ, T ਟੈਸਟ, Z ਟੈਸਟ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਟਰੂ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਉਹਨੇ ਟਰੂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਟਰੂ ਕੀ ਆ? ਬੀ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸਦਾ। ਨੈਕਸਟ 28th ਕੁਐਸਚਨ,
The statistical calculation in a classified the data are based on actual value observation. Upper limits दो options I think ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ नहीं show हो पा रही हैं, जो C option हैगी आ lower class limits, lower class limit, ठीक है जी। LCM ਜਿਹੜੀ C option आ वा, और D option हैगी आ क्लास मिड पॉइंट्स, सॉरी इत्थे वो थोड़ा थल्ले आ गया। सो डी ऑप्शन किहड़ी आ क्लास मिड पॉइंट्स, डी ऑप्शन है क्लास मिड पॉइंट्स। सो कहना स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन इज़ क्लासीफाइड द डाटा, जो स्टैटिकल कैलकुलेशनस की जाती वो डाटा क्लासीफाइड करता। इतने मैं थोड़ा डायरैक्टली आंसर दस देना, क्वेश्चन ये थोड़ा लुक गया। एक्चुअल ऑब्जरवेशन द्वारा नहीं करता, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ऑब्जरवेशन द्वारा नहीं किया जाता, ना ही अपर लिमिट द्वारा किया जाता, ना ही लोअर लिमिट द्वारा किया जाता। लोअर लिमिट है लास्ट वन, जे किया जाता तो क्लास मिड पॉइंट्स द्वारा किया जाता। तुसीं देखिया होना जो भी अपने कॉन्टीन्यू सीरीज़ होंदी है तो आप मिड वैल्यूज़ चों चकते हैं, ना ही अपर लिमिट लैने, ना ही लोअर लिमिट लैने, ना ही आप एक्चुअल ऑब्जरवेशनस लैने। सपोज करो मैं क्वेश्चन का मीनिंग समझा देना, स्टैटिकल कैलकुलेशनस कैन बी क्लासीफाइड द डाटा। कहना मतलब ये कैलकुलेशनस किवें कीती जांदी स्टैटिस्टिक के अंदर, जे कहना 1000 बच्चा भी होवे किसी चीज़ को आप एनालाइज करना स्कूल के अंदर, तो वह 1000 बच्चे का जो आप डाटा कलैक्ट करांगे तो उन्होंने ओवरऑल एनालाइज करना बहुत औखा होंदा। फिर आप करते हैं 1000 बच्चे का इदा एक चार्ट बना लें कि 1000 बच्चे चों 0 तो 10 दे विच किन्ने बच्चों के मार्क्स आए, 10 तो 20 दे विच किन्ने बच्चों के मार्क्स आए, है ना। जो आप इस चीज़ को एनालाइज बना लें तो फिर जो तुम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ आ गई तो तुम देखिए होना आप हमेशा मिड वैल्यू में चकते हैं। सो राइट आंसर इज़ क्लास मिड पॉइंट्स। क्लीयर। सो लास्ट क्वेश्चनस हर एक वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चनस करांगे ताकि वीडियो लेंथी भी ना हो तो तुम बोर भी ना हो, और नैक्सट वीडियो इमीडिएटली जल्दी ही थोड़ा प्रोवाइड करवा दी जाऊगी। सो इन अ केस ऑफ द इंक्रीजिंग द मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूट द इंडिफरेंस कर्व इज, कहता जे मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूट इंक्रीज़ कर रहा तो इंडिफरेंस कर्व की जी डायग्राम है वो किमें दी होगी। ये गल याद रखियो, इंडिफरेंस कर्व की डायग्राम किमें दी होगी मैं थोड़ा इतने सारियां दस दिना। एक बार थोड़े दिमाग च पता होना चाहिए कि कनकेव कदों होंदी है, कन्वैक्स कदों होंदी है, पैरेलल कदों होंदी है, तो डाउनलोड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कदों होंदी है। जिहड़ी इंडिफरेंस कर्व आ जे वो जिहड़ी मार्जिनल यूटिलिटी आ इंक्रीज़ कर रही है, पहले आप इहदी गल करते आंसर क्लीयर कर लीए। जे वो इंक्रीज़ कर रही है मार्जिनल MRS, इनू MRS कहते हैं, जे मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूट्स इंक्रीज़ कर रहा तो जिहड़ा इहदा आंसर आ वो इंडिफरेंस कर्व मतलब कह जी होगी कनकेव होगी। क्लीयर। कनकेव होगी जे मार्जिनल रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन इंक्रीज़ कर रहा तो कनकेव होगी। क्लीयर। जे MRS इंक्रीज़ कर रहा तो वह कनकेव होगी। मैं इत्थे लिखी देना MRS। कन्वैक्स कदों होगी जदों वो डिक्रीज़ करूगा, कौन MRS। जदों MRS डिक्रीज़ मार्जिन रेट ऑफ सबस्टिट्यूट डिक्रीज़ करता वा तो कन्वैक्स होगी। हम मैं प्रैक्टिकली नहीं आता, ये प्रैक्टिकली करके देखूँगा ज़्यादा ईजिली समझ लग जूगा। ये तो एक रट्टा लगाने वाली गल है कि जो इंक्रीज़ कर गया MRS तो कनकेव होगी, जो डिक्रीज़ कर गया तो कन्वैक्स होगी। तो पैरेलल कदों होगी जदों कॉन्सटेंट होगी। क्लीयर। कॉन्सटेंट होगी तो वह पैरेलल होगी। सो इत्थे तुहानूं आंसर क्लीयर हो गया। द राइट आंसर इज C। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C आंसर। लास्ट वन, द गुडविल इज वेरी सिंपल। लिक्विड एसेट है, करंट एसेट है, या फिक्टिशियस एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट है। बच्चे कई बार लिक्विड एसेट तो नहीं गा, सबनों पता फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लिखते, बट कई बार करंट एसेट्स के विच इन्वॉल्व कर लेंगे। ये भी नहीं गा जो आपको इंटेंजिबल एसेट्स दिता हो। तो राइट आंसर इज D। आई होप थोनों ये चीज़ क्लीयर होगी। Thank you so much for watching. Subscribe and like if you like the videos. Thank you so much. God bless you all.